संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्। चल गई थी मतलब में। Sri Visnudat Sastri was a great devotee of Sri Mahendra Maharaj and Sri Herakan Baba, better known throughout the world as Babaji. He was present like Sri Babaji's assistant in any great ceremony or ritual during all of Sri Babaji's last manifestation from 1970 to 1984. Shastriji was born in 1908 as the son of the guru of the king of Alwar in the north of Rajasthan in India. He was well educated in the different Vedas and so developed a keen interest in the Indian medical science, Ayurveda. At his university in Varanasi, he gained the title of Acharya, a PhD in Vedic studies. Sri Babaji has said on numerous occasions that in other lifetimes it was him who wrote some of the great Vedic scriptures like the Ramayana. Good. Very good. My soul, in morning come. Shastriji met Sri Mahendra Maharaj in 1948. He guided him away from his Ayurvedic activities towards the Holy Scriptures. He inspired him to write many books and so recite Sanskrit poems and verses in the praise of the divine. As he was a great Siddhi yogi, he gave Shastriji the boon of Trikala Drishti, the gift of seeing the past, present and future. Most people who have known Shastriji have been a witness and have benefited of this blessing of being a great seer. Once Sri Mahendra Maharaj called him to a temple in Vrindavan. There was a picture of the previous manifestation of Babaji, Sri Munindra Maharaj, on the wall. Shastriji had never seen this picture, but recognized the person from a vision he had in his own temple at home many years before. Before leaving the body, he said to Shastriji, "I will give you an important mantra which will give you 3 powers. If Herakan will be in danger, with this mantra you can save it. If there will ever be financial problems around Babaji's organization, this mantra will help you to find the money. And if any Baba presents himself in Topi Kurta and says, 'He is Herakan Baba,' you can only believe him if he knows this mantra." बाबा जी के प्रकट होने से 22 वर्ष पहले श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज इसी स्थान पर यहाँ पर आए थे। Sri Mahendra Maharaj was born in Bihar around the turn of the century. He had his first vision of Babaji when he was only 5 years old. Appeared again on his birthday and at the graduation of high school.
When he finished his studies of philosophy, his desire to be with Babaji was so strong that he renounced the world and wandered barefoot around India for 25 years. By the Divine Mother, he was then guided to the Kumaon region, where after some time, finally Sri Babaji appeared for him. Since that moment, he became the messenger for Sri Babaji and announced that Sri Babaji would re-manifest for the benefit of all humanity. He pursued this relentlessly for the rest of his life. कुछ समय के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ पद्य सुनाओ। तो मैंने उनको श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, उत्तर रामचरित और नैषधीय चरित इनके पद्य सुनाना प्रारंभ किया तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम भी कुछ लिखते हो, तुम बहुत विद्वान हो। मैंने कहा महाराज मैं कुछ भी विद्वान नहीं, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, परंतु मैं लिखता कुछ भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम लिखा करो। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज आजकल का समय ऐसा है कि लेखकों की दुर्दशा होती है। चित्त तो सुचित्त हो, घर में कछु वित्त हो, नृपति को हित हो जब सुंदर कवित्त हो। कि चित्त सुचित्त होना चाहिए राइटर का और उसके पास पूरा पैसा होना चाहिए और राजा उसका सम्मान करे, तब सुंदर कवित्व हो सकता है। तो अब ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं लिखने में असमर्थ। उन्होंने कहा नहीं सब होगा, तुम लिखा करो। उन्होंने आज्ञा दी कि तुम्हारा जन्म, हमारे भाई से कहा कि इनका जन्म भगवान के चरित्र को लिखने के लिए ही हुआ है। अब मैं इनको याद दिलाने आया हूँ कि अब तुम लिखने का काम शुरू करो। फिर मैंने कहा महाराज मैं वैद्यक का काम करता हूँ, जिससे मैं पैसा कमा के और परिवार का पालन करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये पैसा ठीक नहीं है, ये हाय का पैसा है, इससे तुम पनप नहीं सकते। तो मन का कैसे घर का काम चलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं ऊपर से पैसा आ जाएगा, तुम इसको छोड़ दो। मैंने उसी दिन यहाँ नेम प्लेट लग रही थी उसको हटा दी और लिख दिया कि यहाँ कोई इलाज नहीं होता है। श्याम शोभने अहम एव शंखचूड़ो देव विद्यावकार का धनुवंशो विशेषण सुदामा हम हरिपुरा अहमस्तु गोपेशु गोपोपी पार्षदेशु। इतने में महेंद्र महाराज मेरे भाई के साथ यहाँ पर आए। उनके हाथ में एक जल की बाल्टी थी इतनी सी और आकर के यहाँ खड़े हुए। मैंने उनको प्रणाम किया और वो लिखा हुआ पद्य उनको कहा। उन्होंने कहा बोलो। फिर मैंने उनको सुनाया। परम ब्रह्म संसिद्ध सच्चिदानंद विग्रहम मानसम तामसम दीप्यात कुत्ता चोपा धर्म है, ये श्लोक सुनाया। उन्होंने कहा मुझे कोई लाख रुपए भी देता तो इतना प्रसन्न नहीं होता और आज मैं इतना प्रसन्न। बहुत सुंदर पद तुमने लिखा है और इसी तरह से जो तुम्हारे मन में आ रहा उसको लिख लिया करो। इसके पश्चात मैं 9 बजे के करीब स्कूल गया। स्कूल में उस रोज़ मेरा पहला पीरियड वैकेंट था। कागज़ लेकर के लिखने लगा तो 11 श्लोक तक लिखा। 11 श्लोक एकदम से लिख गया। फिर तीसरा पीरियड वैकेंट हुआ, उसमें आगे के श्लोक लिखे। तो ऐसे 40 के करीब श्लोक लिख के और शाम को मैं यहाँ पर आया तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है स्कूल? उनके हाँ महाराज है। ठीक। मैंने कहा महाराज ये स्कूल मैंने लिखा है आज। उन्होंने सुना। सुन करके यहाँ चित्र लगा हुआ था, उस चित्र के सामने खड़े हो गए और मेरे माथे के ऊपर हाथ लगाया और कहा कि जाओ सरस्वती से। बस उस सेकंड से मैं जो बोलता वही सब पद्य में निकलता मेरे मुंह से। आचार्यवरैर्पाश्यं चरणाश्रितस्य चरणाम्बुज रेणुभक्तं चरणाश्रितस्य परपङ्कजदासदास्यं
भगवान पे शिवाय खान वासन यदिसे कृपां कर्णस्य भवामि पात्रं श्रीमतो है जय शिवस्य। अरे छोड़ी यहाँ एक Shastriji wrote many books in his lifetime. His biggest and most known works are perhaps the Sri Harakandeswari Saptasati and the Samba Sadashiva Charitamrit. And so it happened, when Sri Babaji was back in 1970 in Herakan. He said, "Where is my Shastri? Call my Shastri." Shortly after Babaji went to Vrindavan and Shastriji arrived. Without even asking, Sri Babaji whispered the mantra in his ear. His relationship with Sri Babaji was like no other. Very often, for long stretches of time, Babaji shared his small kutir in the night with Shastriji. A bed was made on the ground for him. It was there that Babaji dictated the 9th chapter of the Samba Sadashiva Charitamrit, and Shastriji had many great experiences with him. ये सोमवारी बाबा है, ये हाथी बाबा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे गुरु महाराज आएंगे सन 71 में, उनके लिए ये सब साहित्य मैंने तैयार कराया है। जितने ये सदाशिव चरितामृत लिखा गया तो वो हर 8वें दिन 10वें दिन यहाँ आ जाते थे और पूछते सुनाओ, और सुन करके बड़े प्रसन्न होते थे। उन्होंने कहा कि बस अब वो टाइम आ गया है कि जब तुम गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास की तरह हिंदी में कविता करो। तो मैंने कहा कि महाराज कुछ मुझे आउटलाइन आप दीजिए। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लड़की हम गए थे उस समय गोदी में जो थी उसका नाम हमने सरस्वती रखा था, वो बताएगी और तुम लिखोगे। ये कह करके वो खड़े हुए और उनके माथे के ऊपर एक पोस्ट कार्ड साइज पुराने हैरा खान वाले बाबा का चित्र था। तो उस चित्र से माला उतार करके मुझे दी कि इसको सरस्वती को पहना देना और ये प्रसाद दे देना, अब तुम जा सकते हो। हम आगे यहाँ आए तो हमारी माता ने और इनने पूछा कि क्या कहा, तो हमने सब बात अपने पिताजी को सुनाई। तो और वो सरस्वती यूँ पैरों से चलती थी, घुटनों। तो मेरे पास आकर के और मेरी जो कलम यहाँ पर लगी हुई थी पेन, उसको उसने निकाला, कहा मैं लिखूं। और वो जितने पेजों के ऊपर लकीरें कर रही थी उतने ही पद्य बन जाते थे। और फिर जब बनते बनते वो फुल हो जाते थे, इतने में ही फिर आती खेलती हुई और वो गाती थी, देवा तेरी भक्ति न छाड़ो मुक्ति न मांगो हरि जस कहूँ कहाँ। One place in this world could be called Babaji's home, it will be Herakan Vishwamahadam. In these 14 years he spent there in his last manifestation, he spoke little, and only a small booklet of these teachings was compiled over this period. Many of his teachings were individual, non-verbal, timeless, beyond race and religion. The essence of his teachings is truth, love and simplicity. He prescribed karma yoga, selfless action for the benefit of all, as the best method in this period of time to obtain spiritual progress. फिर जब सन 70 में जून के महीने में बाबा प्रकट हुए तो उनको लोग वृंदावन रहे, वो हैरा खान की गुफा में प्रकट हुए थे। रह जाऊँ चुप नहीं, तो वृंदावन लाए तो उन्होंने कहा कि हमारा आचार्य राजगढ़ में रहता है अचल दास के मंदिर पर, उनको लाओ। तो आदमी भेजे, मैं यहाँ से गया, जा कर के मैंने
दर्शन किए तो वृंदावन की जो शाम्ब सदाशिव कुंज है उसमें चौक में एक तखत के ऊपर बाबा सिंह की तरह विराजमान थे। मैं उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके और वो जरा मुस्कुराए और उठ करके अंदर कमरे में चले गए और मुझको वहाँ पर बुलाया। तो वहाँ जो आदमी खड़ा था द्वार पर उससे कहा कि चिटकनी बंद कर दो किवाड़ों की, और फिर उन्होंने वो मंत्र बोला जो महेंद्र महाराज मुझे बतला के गए थे कि कोई भी आदमी, तुम मेरे आचार्य हो, महेंद्र महाराज ने कहा इस पंथ के आप आचार्य हो, कोई भी आदमी टोपा और कुर्ता पहन करके आ जाएगा और कहेगा कि मैं हूँ हैरा खान बाबा, तो तुम कैसे नटोगे। तो इसलिए मैं तुमको एक गुप्त मंत्र बतलाता हूँ जिसको मैं जानता हूँ या हैरा खान वाले बाबा जानते हैं या तुम जानोगे। उस मंत्र को जो बोल दे उसको तुम हैरा खान वाले बाबा कहते हैं। जिस समय मैं कुंज में गया सैकड़ों आदमी बैठे थे, बम्बई के, अहमदाबाद के, कलकत्ते के, दूर दूर के, महेंद्र महाराज के बराबर। और ये चल रहा था उनमें कि ये हैं बाबा या नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे भीतर बुला करके वो मंत्र बोला तो मैंने तुरंत ही उनको प्रणाम किया। मैंने कहा महाराज आप वास्तव में हैरा खान वाले बाबा हो, मेरे गुरु ने जो मंत्र बताया था उसका आप उच्चारण कर रहे हो, इससे बढ़कर और क्या सबूत होगी। मैं तुरंत बाहर आया कमरे से और मैंने जोर से जय लगाई। मैंने कहा हैरा खान वाले बाबा की जय। मैंने कहा यही है। फिर मैंने स्पीच दे करके सबको समझाया और सब लोगों ने माला ले ले करके इनके ऊपर डालना शुरू किया और उसी दिन से भोले बाबा की जय हो। समझा। तो इस तरह से इनका मिला। स्वयं मैं नहीं मिला किंतु उन्होंने ही अपने चरणों में मुझको बुलाया। तो बाबा का ये दिव्य रूप। और फिर उसके बाद मैं 15 वर्ष तक बाबा के साथ ही रहा। इतने यज्ञ किए बम्बई में, कलकत्ते में और गुवाहाटी में, जहाँ जहाँ यज्ञ किए वहाँ वहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा भी मैं करता था और यज्ञ भी करता था। एक एक यज्ञ में 1-1 लाख आदमी रोज जीवित। इसी तरह से बहुत यज्ञ किए, 171 यज्ञ किए बाबा ने। और सारे विश्व में उनकी ख्याति फैल गई। और जो विदेशी लोग आते थे आग्रह करते थे कि महाराज आप हमारे देश में चलो, तो बाबा ने कहा कि नहीं, मैं इस गंगा और यमुना को के देश को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। जिस किसी को आना है यहीं आओ और तुम लोग यहाँ से सीख के जाओ भगवान का नाम और अपने यहाँ प्रचार करो। परंतु उन्होंने पहले राव को भेजा था, BBS राव को, एक बार विदेश, और फिर उसके बाद और तांता लग गया। अब मुनिराज महाराज पधारते हैं और वो विदेश में प्रचार प्रसार करते हैं। बाकी बाबा अपने जीवन में नहीं गए। बाबा तो हर कण में व्यापक हैं। वो भारतवर्ष के प्राण थे।
Babaji often warned us about the Kranti, an enormous change which was about to unfold. A spiritual explanation of moving into a new dimension or an expanded consciousness sounds wonderful. When we relate to this on a worldly, material level, we talk about war and destruction, where old forms of duality will have to make place for a future where humanity is in harmony with the divine. हो सकता है, क्योंकि ये सब भविष्य के गर्भ में है। जब भगवान की इच्छा होती है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब वो संहार करना चाहते हैं, हर तरीके से ऐसी सामग्री उपस्थित कर देते हैं कि सेकंडों में हो जाता है, और जब वो शांति करना चाहते हैं तो 1 सेकंड में ही सब शांत हो जाता है। वार एक प्रकार की खेत को गुड़ाई है। गुड़ाई जब की जाती है खेत की, तो उस समय खराब घास हटा दिया जाता है। इसी तरह से जो अननेचुरल चीज़ें हैं, उनको दूर करने के लिए, साफ करने के लिए ये आवश्यक है। युद्ध, कलह और परस्पर विद्रोह। ये तो बाबा जी ने पहले बतलाया है कि ओम नमः शिवाय के अधिक से अधिक जप करो, जिससे ये टाइम शांतिपूर्वक पार कर सके। इसका और कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान का स्मरण और ध्यान। इससे तुम जो ध्यान करोगे, उससे औरों की भी रक्षा हो जाएगी। उन्होंने जब आए तो उनकी 4 प्रतिज्ञाएं थी कि एक जात पात का भेद बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, जो उन्होंने कर दिया। दूसरी बात थी कि सब देशों को एक बनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक भाषा हो और एक ही धर्म हो। और ये बीच बीच में राजनीतिक लोगों ने जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि ये इटालियन है, ये फ्रेंच है, ये इंग्लिश है, समझिए, इन दीवारों को ख़त्म कर दिया जाए। सारा विश्व एक है। Apart from his saintly side and remarkable qualities, he was such a wonderful, loving person to spend time with. In his attitude and behavior, he was and always remained a simple man. He always had time for anybody, always ready to cheer you up, always there to remind you of the greatness and compassion of the divine. Shastriji led a very healthy life. Most probably because of his vast knowledge of Ayurveda, he was never sick and maintained high energy levels up to a very respectable age. When his daughters and oldest son were married, he must have felt that his earthly duties were over at 97 years of age. He laid himself down, limited his food to just a few spoons of buttermilk a day, and hardly spoke. He remained in this particular state of samadhi for more than a month, and then this staunch devotee of the divine, the great scholar, the lovely family holder, guru and guide to many, left the earthly plane. A great loss to all he left behind, but for him surely a band of angels must have been singing hymns and the devtas welcoming him home in heaven.
ऋतु रंगी आज देनाएगे चैता को महना ऋतु रंगी देनाएगे चैता को महना भेटोई की आस बोलो ओम तमने प्रसीद मुनिनाथ दयावतारी सिद्धाश्रमी सहज सुंदर रूपधारी भक्तानुरक्त शिवैरक खानचारी श्रीमन महेंद्र हृदय सततम बिहारी देहि त्वदीय पद पंकज दास्य भक्तिं याचे सदा पद सरोज नवानुरक्तिम आनंद सिंधुरसदेव सुधा समुद्र त्वामाश्रितो वरदनन्दतेश विप्रः क्षीराब्धितीर वसतिस्तुषितोऽपि पक्षी बिन्दुं न काङ्क्षति कुलप्रतिभङ्गभीतः लोकतृषापनयनवृत दीक्षितं त्वां श्रीमन्महेन्द्र स्वव्याजपितातोऽयम् ॐ तदाश्रितः श्रीचरणाश्रितो मे भूयात् सहायो भवकर्णधारः नाथो महेन्द्रो भवतात् सदा मे यथा महेन्द्रस्य त्वमेव नाथ। भोले बाबा की जय, जगत गुरु भगवान हैरिया खंडी की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, जगदम्बे मात की जय, हैरा खंडेश्वरी मात की जय, बजरंगबली की जय। ओम